everyone, this is Abhishek Rajendrekar and today I am here at Arogya Bhavan. Today I am here to visit the museum here. So I will show you some special artifacts which are present here. So get on with me. I will show you first of all, this is the, as you can see, this is Ghan Vagya, which is basically used by the Oraon tribe in their ceremonial occasions. And furthermore, you can see this is the Nagra. This is called the Nagra. And so first one that was here, that was called Dhokra. And the second one, नहीं ये तो ये है ना, the dancing group का है ना ये तो. ढोकरा डोकरा, ब्रोंज, आशियन। मैन प्लेइंग, मांडल बजाता हुआ व्यक्ति, नगड़ा बजाता हुआ व्यक्ति और है नृत्य करती हुई महिलाएं। हाँ. तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि सारा मतलब आदिवासी जनजाति में सेरेमनियल क्वेश्चंस में परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है. मेरा नहीं यहाँ से हाँ ठीक ठीक एक नंबर आ रहा है। And furthermore, you can see this bronze statue over here, and this is called the single. This was also often used in order to make a call or to give some special of information in the village. And furthermore, this is called netho. Netho, na? यस This was used by the village women, tribal women. They used to keep them on their head and carry their load in their regular work style. This is the flute over here. तो बजा के देखे क्या? नहीं बजेगा, नहीं बजा पाइए। अच्छा ये क्या है? ये डंडा है स्पेशल बजाने वाला, नगड़ा बजाने वाला। नगड़ा बजाना. Okay. And after that, this is the replica of Chain dance. हाँ. This is ये भी bronze है ना? हाँ This is a replica which shows the tribal occasion in which 1, 2, 3, 4, 5 ladies are dancing together, showing us our cultural heritage. And furthermore, this is the artifact which shows how the ancient tribal people used to play the nagra or drum, cymbal, etc. Then I think you Touch. must not have seen this. This is what is it? This is the Sushir Vadya. यस It is a kind of wind instrument. You put this hole in your mouth and then blow the air, which produces certain kind of pleasant sound. You know, that kind. Then here you can see. This is the Tantvadya. This is the Tantvadya. It is basically string which is played by our fingers and basically like a replica of guitar, है ना? गिटार के जैसा ही उस हम लोग का जनजाति में सब होगा. Then this you can see this is an example for Chhau. Chhau वाला है ना ये? यस This is an example of Chhau Nritya. Basically, it was the origin from Saraikela Khashawa, na? यस The Chhau Nritya. यस That was being Three types. asked by JPSC. Okay. And then looking for the this is the jewelry item. ऐसा पीछे से भी जाएगा ना तो मेरा ये पीछे भी था ये सब सारा. हाँ सब आ रहा है। So you can see this. This is the pigeon home. That is the ornament worn by. अच्छा ये ladies के लिए जेंट्स के लिए था? लेडीज के लिए। दोनों ladies के लिए. हाँ। अच्छा दोनों ladies के लिए. अभी यही वाला फैशन से चल रहा है। हाँ उस समय का फैशन है. उस समय का था, अभी चल रहा है ये वाला। अच्छा अभी ऐसा. अभी मतलब अभी ये क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। ओके ओके. And then अच्छा ये लोग मतलब खोजा गया है या फिर सब ऐसे रेप्लिका रखा गया है? ये सब बना बना के रखा गया है। हाँ पुराना टाइम में बनाया। हाँ अच्छा ओके. ये दिखाता है कि पहले इस तरह का बनाया जाता था ढोकरा कला। हाँ तो everything which is being displayed here, it represent mainly the Dokra culture heritage. Okay. So
here you can see there are the female deer, elephant, fish, antelope, and there is more chimney and seated deer. So basically these are not being excavated, but these are formed like a replica, which shows our Dokra cultural heritage. Okay, and in this area you can see a necklace. That necklace, which is being made of aluminium, and there is the cotton beads and also stone ones. There is Panchmukhi Dhurpan. Where is Panchmukhi? Panchmukhi. हाँ, Panchmukhi Dhurpan मतलब वही दिया टाइप का ना? करने वाला। 5 टाइप का दिया, 5 दिया की कनेक्ट करके। So in this area you can see this. This is also a Dhokra art. ये भी Dhokra art में है ना? ये सोहरा है। नहीं, ये सोहराई है। सोहराई या फिर क्या बोलते हैं? एक और आर्ट होता है ना? जय टैग मिला हो। जय टैग तो सोहराई को मिला ना? हाँ। हाँ, सोहराई करेक्ट बोल रहे हैं। तो सोहराई आर्ट, this is showing the cock fight here, and this photo shows peacock which is roaming in the jungle. So every Sohrai art gives us a special meaning. And every Sohrai art gives us a special meaning about that. Looking here, you can see that this shows us that two cocks are fighting, which was a general example during the tribal era, when the people used to make their cock fight in order for entertainment purpose. Okay, and this, as I told you, this is the peacock in the forest. Third one, this is the third one, a very interesting one, which you can see here is a crab feeding on cow milk. If you look carefully here in downward, this is the crab. This shows the crab which is feeding from the milk of a cow. This is not goat, this is cow, and above that, this is a kind of, I think, ये तो लगता है कि कोई ये होगा ना, इसी का बच्चा दूध पीता हुआ केकड़ा है, और उसके ऊपर में जानवर कोई उसी का बच्चा होगा। ठीक है, ओके। नाउ फर्दर देयर आई विल शो यू समथिंग न्यू। इसका okay, now okay, from starting from here, this is the chatai. This was the chatai here, and here is the khilona, that is toy car. This is the toy car. This is tokri, and this is the spinning wheel which was used to make cotton. है ना, कॉटन के लिए यूज किया जाता था बेसिकली ना। ओके, एंड ये तो चटाई हो गए जो ट्राइबल पीपल अपने डेली का यूज के लिए बनाते थे, खजूर के वो से ना बीनते हुए बनाते थे ना। तो शादी में भी जो हम लोग का जो सांस्कृतिक शादी में इसका यूज किया जाता है। हम लोग का संस्कृति में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बिना हम लोग का कोई भी सेरेमोनियल ओकेजन नहीं होता, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। इसका अगर आपके पास ये है, दैट रिप्रेजेंट योर कल्चर हेरिटेज, एंड देन यू आर कॉल्ड एन आदिवासी है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, आई विल शो यू, देयर इज द ब्रूम। ये झाड़ू हो गया, फिर ये थैला हो गया। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तरह का कि देखिए ये बैग अभी न्यू मॉडल में मतलब ये पर अभी है, लेकिन देखिए पुराना में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कहते हैं कि ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, बट पिछड़ा कहना गलत होगा, क्योंकि ट्राइबल लोग एक जंगल प्रेमी इंसान थे जो जंगल में ही रहते थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग को किसी मॉडर्न स्टाइल फैशन का पता नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज द लेडी पर्स बैग, यू कैन से, है ना, फेमस। इसका तो अभी फेमस डिज़ाइन, अभी ज़्यादा फेमस हो जा रहा है। जिस तरह हम लोग अभी उसके बारे में बता रहे थे, उस गहने के बारे में, ये भी पुराना है, लेकिन अभी वो भी लेटेस्ट फैशन में चला गया, क्योंकि
पुराना जो from time on time, generation on generation, when the tribal people started getting educated, they came to know about their culture. So they are वो लोग अपना जो भी कल्चर था उसको वापस से अपना मतलब आज ये कर रहे हैं, यूज करना शुरू कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, शर्म नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरा कल्चर था। तो ये है सूप। इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे संस्कृति में। हाँ, इसका बेसिकली क्या काम है अजीत जी, थोड़ा बताइए। इसको शादी ब्याह में यूज किया जाता है। हाँ, कोई भी हम लोग त्यौहार या पर्व या फिर पूजा संस्कृति में। हाँ, सबसे मेन बात है कि ये आपका डेली यूज के लिए था, जिसमें कि हम लोग तो बेसिकली चावल खाने वाले थे। तो उसमें जो कूटा हुआ ढेकी से कूटा हुआ जो चावल होता है उसमें आपको कुछ धान का जो है उसको रिमूव करने के लिए हाँ बेसिकली उसको ये सूप को यूज कर रहा था। फिल्टर एक टाइप का है ये। हाँ, एक तरह से फिल्ट्रेशन का सॉलिड टू सॉलिड रिमूवल के लिए, जैसे कि धान और चावल, तो धान क्योंकि हल्का होता है तो वो मतलब मेथड सोचिए उस समय भी हम लोग के लोगों को जानकारी था कि फिजिक्स के बारे में भी उनको जानकारी था। उन लोगों को पता था कि जो हेवी आइटम है जैसे कि चावल है वो सेटल रहेगा और जो धान है वो हल्का है क्योंकि इसका वजन कम है तो वो हवा से उड़ जाएगा। तो ये भी देखिए आप अपनी फिजिक्स में पढ़ते हुए कि ये भी एक यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए ये हम लोग तो दैनिक कार्य में यूज करते ही हैं। हर दिन में जो भी कार्य होता है इसका उपयोग करते ही हैं, लेकिन इसका अभी प्रेजेंट टाइम में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सांस्कृतिक और पूजा पद्धति में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बिना हम लोग मतलब अधूरा टाइप का लगता है। इस बेसिकली ये सिर्फ आदिवासी तक की नहीं है, आप इसमें आप हिंदू कल्चर में भी आप इसको देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ये सब चीज़। इस शादी ब्याह हो गया कोई स्पेशल तो इसमें हम लोग सब कुछ अपना पूजा सामग्री इसी पे लेके जाते हैं। अच्छा अजीत जी ये देखिए ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ये क्या है? ये थोड़ा सा हमको लग रहा है मछली पकड़ने वाला है। ये मछली पकड़ने वाला जिसको घोगी बोलते होंगे। घोंगी, हाँ घोंगी बोलते होंगे। घोंगी हो गया, मछली हो गया, चिंगड़ी मछली हो गया। मतलब इस यंत्र का नाम क्या है ये जानना है। ये यंत्र का नाम है इसको नहीं ये चिड़िया पकड़ने वाला है, बर्ड केज। बर्ड केज है? नहीं बर्ड केज तो ये बर्ड केज वो वाली है। ये हो जाएगा फिश ट्रैप, जिमरी बॉस जो नदी तालाब में मछली पकड़ने के लिए जनरली उपयोग किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन वी कैन सी हियर ये सजावट के सामान को रखने के लिए, सजावट के लिए है। आप इसमें देख सकते हैं अभी आप लोगों के पास पोर्ट आ गया होगा, गुलाब फूल रखने के लिए पोर्ट आता है। लेकिन देखिए आदिवासी कैसे पहले यूज किया जाता था। तो मतलब बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि हम लोग को ये दिखाना था कि आदिवासी उतना भी ज़्यादा पिछड़े नहीं है जितना उनको माना जाता है। वो एक अपने जंगल के एरिया में सीमित जरूर थे, बट उनको हर एक चीज़ का जानकारी था। उनको फिजिक्स का भी जानकारी हो गया, उनको फैशन का भी जानकारी हो गया। मतलब बेसिकली समझिए कि वो अपने अंदर कल्चर में ही वो लोग सीखते गए अपने पूर्वजों से और अपना ज्ञान को बढ़ाते गए ये चीज़। सो यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस इज ये गोल वाला है आपका ज्वेलरी बॉक्स है ना ये वाला, ये जो है 15, 16, 17, 18। अच्छा ठीक है ना, ये मतलब समझिए कि डेकोरेशन 17 नंबर में देखिए। हाँ ज्वेलरी बॉक्स, ये मतलब गहना वगैरह रखने के लिए। देखिए कैसा है हम लोग का ज्वेलरी बॉक्स, कैसा रहा होगा उस समय ज्वेलरी बॉक्स। समझे? तो एक चीज़ आप इसमें देखिएगा, इसमें पूरा आप इसमें देखिएगा ना, ये इसमें देखिएगा ना मतलब ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसमें आप देखिएगा एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जितने भी, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक प्रेमी हैं, तो जितना भी आइटम यहाँ पे हम लोग बनाए हैं वो सारे आप देख सकते हैं या तो बैम्बू का है, ये है ज्वेलरी बॉक्स, ये लग रहा है या तो जितना भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्योंकि प्रकृति लवर थे तो हम लोग का जितना भी आइटम है वो सब मतलब नेचुरल ऑर्गेनिक ही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा बैम्बू का आइटम बना हुआ है और वहाँ पे आपको जब हम लोग दिखाए वहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब ये क्या बोलते हैं उसको खजूर का वो बिन के बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉट्स रखे हुए हैं इस तरीका का। ये है ओखली, इसको यूज किया जाता था चावल को पीसने के लिए या फिर कुछ अगर मसाला वगैरह कुछ अगर ये करना है तो उसके लिए इसको यूज करते थे हम लोग। और ये है मोटर ग्राइंडर, इंग्लिश में जिसको हम लोग अभी मॉडर्न समय में हम लोग यूज करते हैं मिक्सर ग्राइंडर। तो उस समय के लिए ये था, ये एक तरह का चक्की था ना, आटा चक्की जो मतलब चावल पीसने के लिए। ओके ठीक, मूविंग ऑन आई विल शो यू दिस
लाइट जलाइए तो लाइट ऑन है क्या? स्विच है कहीं पे? कैसे बंद है मेरा कैमरा कहीं किया नहीं, यहाँ पर से होगा। हाँ ठीक। ठीक है, हमारा है ना। हम्म, तो देखिए एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काठ जो बहुत पुराने समय में यूज किया जाता था। तो उस समय भी देखिए ये जो काठ बना हुआ है ये बैम्बू का है। सुनिए, टच नहीं करना। ओके ओके ठीक है, टच नहीं करना है यहाँ पे, हाँ, टच है ना? नहीं करना क्योंकि ये सब सारा मतलब शो के लिए रखा गया है हाँ। एज एन एग्जाम्पल। तो ये आपका बैम्बू का बना हुआ है। वो वाला एरिया जो है वहाँ पे या तो भैंस या फिर कोई भी बैल, बुल वगैरह, हाँ। हाँ उसको वहाँ पे बांध के ये लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। तो ये आपका एक रेप्लिका रखा हुआ है, ये अभी ओरिजिनल ये एक्सकैवेशन का पार्ट नहीं है। इधर भी है। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हैट बेसिकली ये जो है ये आदिवासियों के द्वारा यूज किया गया, वो उस समय का एक तरह का टोपी था धूप से बचाने के लिए, है ना। तो ये हाँ, सो कमिंग बैक टू द स्टोरी आई विल टेल यू दिस आर द प्लो, है ना, बेसिकली यूज फॉर कल्टीवेशन एग्रीकल्चर पर्पस। और ये वाला जो है ये जब इसको मतलब कोई भी बैल वगैरह में बांध के, है ना, पैर से ही जोता जाता था ना। पैर से जोतने के बाद में ये वाला जो आइटम है, ये वाला आइटम को यूज किया जाता था जमीन को प्लेन करने के लिए, है ना। जो ये इनके द्वारा जो कोड़ा गया तो उसको प्लेन करने के लिए, ताकि वो सुटेबल हो जाए कल्टीवेशन के लिए। तो बेसिकली हम लोग उगाते थे राइस वगैरह, राइस पैडी हो गया, वीट वगैरह हो गया, ये सब हम लोग को उगाने का था। अब जैसे वो वाला आइटम को यूज हम लोग कर लिए, उसके बाद में जब उपज हो जाता था, धान मिल जाता था, तो ये वाला जो आइटम है यहाँ पे इसको बोला जाता है ढेकी, है ना। तो क्योंकि हम इसको छुएंगे नहीं, हम बस आपको दिखा रहे हैं, इस जगह पे पैर से मतलब इसको दबाया जाता था। और ये वाला जो सामने का जो है यहाँ पर में जो भी धान है उसना हो गया, या फिर आपको अगर अरवा अगर कराना है तो वो वाला चीज़ को यहाँ प्लेस किया जाता था, जो कि फोर्स के वजह से वो झटके से मारता था, और जिसमें से धान अलग हो जाता था फट के, और फिर उसमें से हम लोग को चावल मिलता था। इसी में से जो हम लोग का धान और चावल, जो धान फट के बाहर निकल गया और चावल जो बचा, ठीक है। हाँ। अब मूविंग ऑन, आई विल शो यू दिस काइंड ऑफ वेपन। दिस इज द बो एंड एरो एंड दिस इज द स्वॉर्ड, है ना। तो बेसिकली ये तीर धनुष जो था उस समय और अभी भी हर घर, हर देहात जहाँ रिमोट एरिया है वहाँ पे अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जंगली जानवरों से बचने के लिए। और प्लस उस समय यूज किया जाता था मुगल शासन या ब्रिटिश, है ना, इन लोगों से भी जब लड़ाई होता था उस समय भी अपना बीच बचाव के लिए ये तीर धनुष का इस्तेमाल करते थे आदिवासी लोग। और जहाँ जहाँ अभी रिमोट एरिया है, जैसे जहाँ पे हाथी वगैरह का ज़्यादा, बाघ वगैरह का ज़्यादा मतलब परेशानी होता है, तो वहाँ पे भी अपना सेफ्टी के लिए अभी भी आदिवासी लोग इसको यूज करते हैं। प्लस ये सिर्फ और सिर्फ एक हथियार ही नहीं है, ये एक ट्रेडिशन का एक हिस्सा है जो बेसिकली वेरियस सेरेमोनियल ओकेशंस में इसको यूज किया जाता है। एक हम एग्जांपल आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि ये जो तीर है, तीर का जो नुकीला हिस्सा है, तीर का जो नुकीला हिस्सा है उसको यूज किया जाता था जब एक नवजात बच्चा जब जन्म लेता है नया, तो उसको जो नाभि होता है, नाभि को कट करने के लिए इस तीर का ही इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये एक हम लोग का कल्चर का भी एक हिस्सा हो जा रहा है। साथ में साथ ये तो एक आत्मरक्षा के लिए तो है ही, प्लस ये कल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शादी वगैरह में भी इसको बहुत ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्वर्ण तलवार, तो इसका भी यूज था। एक आप तो जान ही रहे होंगे कि इसका यूज हो रहा होगा लड़ाई वगैरह के लिए, आत्मरक्षा के लिए, है ना, दुश्मनों से बचने के लिए। तो इसके अलावा जो हम बता रहे हैं, ये बेसिकली शादी में भी एक स्पेशल रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि तलवार को जो लड़की के घर के लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका भाई हो गया, तो वो ये तलवार अपना घर का जो पारंपरिक तलवार है उसको वो लेके जाता है और तालाब में वो तलवार को मारता है, जिससे कि पानी जो है, पानी क्योंकि पानी स्थिर रहता है, स्थिर में तो वो गंदगी उसमें रहेगी, उसमें खिदर बोलते हैं, कादो वगैरह भी रहता है। तो तलवार को जब वो पानी में मारता है तो पानी साफ हो जाता है, और उस साफ पानी को यूज करते हैं वो लोग दूल्हा का स्वागत के लिए, उसका सेवा करने के लिए, है ना। तो ये भी एक हम लोग का रिचुअल, एक समझिए ट्रेडिशन का एक हिस्सा हो गया।
बाकी तो आप जान ही रहे होंगे, इसका इस्तेमाल बनावट से ही समझ गए होंगे कि इसको लड़ाई के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद दूसरी चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, ये भी आपका एक हम लोग का पेंटिंग का हिस्सा ही है। ये कपड़े के ऊपर बनाया गया पेंटिंग है। ये स्थिति जो आप देख रहे हैं, ये अभी भी आपको स्टोरी है एक, हाँ। इसमें आपको दिखा रहा है कि कैसे किस तरीक़ा से एक माँ अपने बच्चे को नहला रही है या फिर उसको भरण पोषण कर रही है। और जनरली आप देख सकते हैं उस समय का यहाँ पे जो घर होता था, उस समय का जो इन्वायरमेंट होता था, आप इधर देख सकते हैं, इधर पूरा का पूरा जंगल भरा हुआ है। तो एक मतलब जितना भी पेंटिंग है सारा एक आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा उन आज से 1000 साल 1500 साल बहुत पहले की चीज़ों का। अभी भी कुछ गांवों में इस तरह की स्थिति अभी भी देखने को मिल सकती है। अभी भी है, अभी भी है। अभी भी हम लोग का ट्राइबल के लिए लोग बोलते हैं कि हाँ एसटी रिजर्वेशन एक हटा देना चाहिए। बट अभी जो जेन्युइन जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज में अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके पास कोई भी अभी के समय का मॉडर्न सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे भी देखिएगा कि इस तरीका का स्थिति वहाँ पे भी अभी भी पैदा है, अभी भी दिखाई देती है, अभी भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एसटी रिजर्वेशन के लिए एक अलग कोटा बनाया, ताकि हम लोग जैसे लोग इस चीज़ से आगे बढ़े, थोड़ा इन सब चीज़ों से हम लोग आगे निकल सकें। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं ये एक पेंटिंग जिसमें कि एक बूढ़ा पिता है, हो सके उनकी है। नहीं उनकी बेटी नहीं लग रही, क्योंकि उस समय ये या तो दादाजी होंगे, दादाजी होंगे या फिर इसका पोता पोती होंगे। हाँ, पोती होंगे। तो देखिए इसमें आपको समझाया जा सकता है एक चीज़ कि देखिए उस समय हम लोग अपना जो पूर्वज थे उनका कितना आदर करते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक दादा है जो अपना पोता या पोती है, उनके साथ में कितना प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अभी के समय में तो देखिए टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह सारा चीज़ प्रचलन में है, बट उस समय कुछ नहीं रहने के लिए जो बच्चे होते थे वो अपने दादाजी के पास में जाते थे और उनसे पूछते थे उनके पूर्वजों के बारे में, कुछ कहानियाँ मतलब जानते थे, और दादा उनको उस लोक कथाओं है ना, लोकगीत वो सब इसको सिखाते थे। क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का कोई भी सोर्स नहीं था, तो हमारा जो एजुकेशन बेसिकली होता था वो हम लोग हमारे पूर्वजों के पीढ़ी दर हम लोग में आता था, सुनकर ही आता था। उसके बाद में ये देखिए इसमें कुछ बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं। नहीं, खेतों पे काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हम धरती को बंजर ना रहने दें और उसमें पेड़ लगा के और हरियाली किया जाए। और प्रकृति प्रेमी है जी हाँ। और इस एक आप संथाल में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें वो लोग मारान गुरु हो गए, उसके बाद में ये बरगद का पेड़, और ये कौन सा एक पेड़ है जिनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, करम बरगद नहीं है, साल का भी महुआ का भी, हाँ महुआ का ज्यादा है। तो इसमें ये फोटो में दिखाया जा रहा है कि देखिए आधा एरिया में देखिए जंगल कट गया है ना, बीच का एरिया खाली है। तो जो हमारे जनजाति हैं वो लोग ऐसा मतलब खाली है ना बंजर जमीन नहीं देख सकते हैं, वो क्योंकि प्रकृति प्रेमी है, पूजा करते हैं, इसलिए इस फोटो में देखिए ये छोटे छोटे बच्चे मतलब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वापस से जो यहाँ पे पेड़ हट गया वो वापस से यहाँ पे हो जाए। इसी कारणवश अभी भी आप देखिएगा कि बहुत सारे नेक्सलाइट जो बेसिकली अभी बन जा रहे हैं वो जंगलों के खत्म होने की वजह से हो रहा है। जो पूंजीपतियाँ हैं जो अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगाने की वजह से पेड़ वगैरह कट जाता है। तो उस समय भी बहुत लोग थे जो अभी नेक्सलाइट बन गए, वो लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस किए, क्योंकि प्रकृति प्रेमी है वो लोग, पेड़ पौधा जल जंगल जमीन इन्हीं से उन लोग का प्यार रहता है। तो जब इस तरीके का हालात पैदा होता है तो वो लोग फिर एक्शन के मोड में चले जाते हैं। अब आगे हम लोग उस चीज़ में नहीं जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको हम दिखाएंगे, इसको थोड़ा सा लाइव से जोड़ देते हैं ना, मतलब इसको थोड़ा करंट से जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे संगठन या तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन लोग हैं जो बोलते हैं कि पेड़ बचाओ। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं 26 जून में, है ना। हाँ,
तो ये आपका अगर हम लोग करंट से अगर हम लोग देखें तो हम लोग अभी बहुत सारा सरकार स्कीम पॉलिसीज भी बनाए हैं कि हाँ वृक्ष रोपण करें। सरकार जागरूक कर रहे हैं। हाँ, जागरूक अब देखिए कर रहे उस समय की आदिवासियों के जो ऑलरेडी जागरूक थे वो वो पहले से जागरूक हाँ थे इस सब तो चीज़ों कैसे को लेकर। पेड़ पौधे हमारे जीवन को बचाते हैं। हाँ। अभी देखिए कितनी पोल्यूशन, कितनी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, फिर भी सरकार उनको जागरूक दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं और उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं कि पेड़ लगाइए, हर कोई पेड़ पर लगाइए। उसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो आदिवासी जनजाति हैं वो लोग सरकार से बिना पैसे लिए भी वो लोग मतलब ये सब जो लोग काम- समझते ये थे सब- कि प्राकृतिक है तो सब कुछ है। तो वो लोग मतलब बिना पैसा से भी जितना उनसे हो पाए किसी तरह का भी पेड़ हो वो लोग मतलब यहाँ पे लगाते थे। और यही तस्वीर वो बता रही है कि किस तरह। और ये फोटो वही आपको मतलब समझा रही है। हाँ नीचे में आप देख सकते हैं ये सारा जो है सोहराई पेंटिंग का हिस्सा है। देखिए इसमें आप सोहराई का ये पेंटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला फोटो जो है ये फोटो गुमला का बनाया गया है और गुमला का एक छोटा सा गांव को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं किस तरीका से एक विवाहित जोड़े किस तरीका से घर को संभालने के लिए चलाने के लिए कैसे वो लोग मतलब काम करते हैं, आजीविका को कैसे ये लोग चलाते आजीविका हैं। को कैसे वो लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप देखिएगा कि जो पुरुष होता था क्योंकि हम लोग का जनजाति में भी पुरुष प्रधानता था उस समय। नहीं था पुरुष प्रधानता। पुरुष प्रधान नहीं है इसमें, हमें दोनों बराबर है। अच्छा दोनों को बराबर का दोनों बराबर उसका दर्जा है। इसीलिए देखिए दोनों जब बराबर हैं तो देखिए दोनों जन इकट्ठा होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक पुरुष जो है वो मतलब कुदाल चला रहा है, पानी काट रहा है और जो फीमेल है वो देखिए घास निकाल रही है। दोनों जन मतलब एक दूसरे का सहायता करते हुए अपना जीविका को इसमें किसी को प्राथमिकता नहीं दिया गया प्राथमिकता कि औरत महान है या फिर पुरुष महान है। तो इससे समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे आपका जेंडर इक्वालिटी आपको दिखाई देगा। ये मतलब हम लोग का उस समय डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कभी नहीं रहा। बोलिए हम लोग अनएजुकेटेड थे फिर भी हम भले- लोग पास इतना समझ था कि हम लोग इस तरीका का जो डिस्टिंक्शन है वो सब नहीं करते। कभी नहीं किया। इसलिए देखिएगा कि हर ओकेशन, हर पर्व त्योहार, हर धार्मिक स्थान में महिलाओं को विशेष मतलब उनको देवी का भी सम्मान दिया जाता है, देवी का और विशेष अधिकार दिया गया है। क्योंकि कोई भी हम लोग का कार्य बिना स्त्री और पुरुष के मिले बिना काम नहीं होता। आप अभी भी देख सकते हैं और बाद उस समय का भी देख सकते हैं। उसके बाद में ये तो आपका ये देखिए यहाँ पे भी जैसे कि नृत्य भी हो रही है, नृत्य से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। नृत्य भी यहाँ पे देखिए ये वाला फोटो जो है ना बेसिकली कैसे संघर्ष से समृद्धि तक वो लोग बढ़े ये उस कलाकृति को समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए समझिए कैसे क्या होगा। इसमें देखिए स्टार्टिंग में आप देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो आदिवासी है वो आदिवासी अपना जो कल्चर को है कल्चर को भी फॉलो कर रहा है। साथ में देखिए यहाँ पे वो पढ़ाई भी कर रहा है। इसमें देखिए आप जो मॉडर्न कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहा है। इसमें देखिए वो स्कूल भी जा रहा है ना। देखिए उनकी माँ जो है वो खेती बाड़ी भी कर रही है, खेती भी कर रही है, बच्चे को भी मतलब पकड़ी हुई है। जो बच्चा अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके साथ अभी ये खेती में काम कर रही हैं और जो बच्चा स्कूल जा पा रहे हैं उसका भी स्कूल भेज रहे हैं। उनका भी देख रहे हैं। और यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, यहाँ रोड भी बन रही है। ये लोग मनरेगा के अभी तो उसको बोला जा रहा है VVG नया नाम दिया गया है मनरेगा को चेंज करके जो 125 दिन का जो है वो बढ़ा दिया गया है लेबर वाला। इसमें देखिए यहाँ पे ये लोग लेबर काम भी कर रहे हैं। इसमें आप देखिए जंगल में भी ये लोग लकड़ी उकड़ी लाने का ये कर रहे हैं। इसकी माँ यहाँ जंगल से ही मतलब चुन रही है। तो देखिए ये फोटो से एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि आदिवासी के पास में इतना पैसा नहीं है। वो जो भी अपना मतलब खर्च अगर निकालना भी है तो वो बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं अपना खेती बाड़ी जंगल के ही ऊपर में। फिर भी देखिए इतना गरीबता होने के बावजूद अब आदिवासी के ऊपर में इतना सेंस आ गया है, पढ़ाई लिखाई का महत्व लोग जान चुके हैं। तो इतना मेहनत करने के बाद में भी देखिए अब हम लोग अपना बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं एक बहुत फेमस ये जो है आइडल। ये इनका आइडल है, इनको बोला जाता है सिंगी दाई। आप शायद नाम नहीं सुने होंगे इनका या सुने भी होंगे। सुने होंगे लेकिन जान नहीं रहे होंगे। सुने होंगे जरूर। आपको थोड़ा सा हम रिमाइंडर करा देते हैं इनके बारे में। तो ये है सिंगी दाई। आप लोग जरूर जनी शिकार ये सुने होंगे जिसमें कि हर 12 साल के अंतराल में जो
फीमेल लड़कियां जो होते हैं, औरत होते हैं, ये लोग पुरुष का भेष धारण करते हैं और वो लोग शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। अब इसके पीछे में लॉजिक ये है ना, ये जो जनी शिकार जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट किया गया था ये सिंगी दाई एक महारानी थी रोहतासगढ़ की, बेसिकली उरांव जनजाति से संबंधित है ये। तो ये इनका जो था लड़ाई था वो मुगल शासन के साथ में था लड़ाई। तो क्योंकि उस समय पुरुष जो थे वो थक गए थे, हार गए थे, और पुरुष को सहायता प्रदान करने के लिए जब ये सिंगी दाई जो महारानी थी वो जब देखती हैं कि अच्छा, इसको थोड़ा सा कट कीजिएगा, हम क्लियर कराएंगे। हाँ, ये उस समय हुआ था जब हम लोग को जानते हैं कि आदिवासी में कोई भी पर्व त्यौहार में होता है तो थोड़ा बहुत हड़िया उड़िया पीते ही हैं। तो उस समय सरहुल का त्यौहार था, उस समय वो लोग पी उ के खा के जितना भी पुरुष लोग था वो मतवार हो चुके थे। तो इसी मौका को देखकर मुगलों ने आक्रमण करना चाहा, मतलब सोचा कि आक्रमण करेंगे तो इससे ये होगा कि हम लोग जीत जाएंगे। तो लेकिन वही जब तो महिलाओं लोग उसमें नहीं पी हुई थी, तो वो लोग पुरुषों का रूप धारण करके मोर्चा संभाल भी ली और उनको भगा भी दिए। तो यही करना, ये जो अंतराल, ये जो कार्य जो ये मतलब महिला जो लोग किए हैं वो मतलब टोटल 12 वर्ष तक ये लोग मतलब इस तरीका का संघर्ष को जारी रखे और 12 वर्ष तक ये लोग मोर्चा को संभाले रखे। इसीलिए हर 12 साल के बाद में इस चीज को याद करने के लिए, और ये सिंगी दाई जी हैं, इनको याद करने के लिए जनी शिकार का एक स्पेशल पर्व मनाया जाता है। उसमें अभी भी देखा जाए तो उसमें हम लोग की फीमेल जो भी हैं आदिवासी लोग, वो लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये था हमारी वीरांगना सिंगी दाई के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये है हमारे दिवंगत बुद्धू भगत और ये है तिलका मांझी और इधर है शेख भिखारी। इनके बारे में ही पहले इतना बता दें। हाँ, तो बेसिकली थोड़ा सा कैमरा इधर हमको पांचों ठीक। तो ये जो पांचों जो हैं ये हमारे उस समय के आंदोलनकारी थे, ब्रिटिश से लड़ने वाले लोग थे। मुगल शासन से मतलब विजेता मतलब उनसे मतलब ये हो गया, खत्म हो गया। तो इन लोगों का जो संघर्ष चल रहा था वो ब्रिटिश साम्राज्य से था। ये लोग थे बुद्धू भगत जी। ये बुद्धू भगत के बारे में आपको हम एक चीज स्पेशल बताते हैं। तो इनके द्वारा आप बताइए अजीत जी, इनके द्वारा कौन सा ये स्टार्ट किया था आंदोलन? ताना भगत आंदोलन शुरू किए थे ये ताना भगत आंदोलन शुरू किए थे। हाँ, ये विशेषकर ये उरांव जनजाति से बिलोंग करते थे। ताना भगत आंदोलन स्टार्ट किए थे। और तिलका मांझी जी के बारे में बताइए। तिलका मांझी आप सुने होंगे कि इनका जो है ये थे ये 1783 से 85 तक चला था। ये सबसे पहले इसे आंदोलनकारी थे तिलका मांझी जी, है ना। इसको आदि विद्रोही भी कहा जाता है। आदि विद्रोही इनको कहा जाता है क्योंकि यही सबसे पहले थे जो शुरुआत किए थे अंग्रेज शासन से मतलब मुक्ति पाने का। फिर उनके बाद आ रहे हैं, देखिए 1792 में आए हमारे बुद्धू भगत जी। ये स्टार्ट किए क्या नाम थे बोले? ताना भगत आंदोलन। इसमें भी बेसिकली वही धार्मिक शुद्धिकरण था, धार्मिक शुद्धिकरण वगैरह हो रहा था। तो उसके अगेंस्ट में थे ये बहुत ज्यादा। तो इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। प्लस उसके बाद इधर हम लोग आ जाएंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है शेख भिखारी का फोटो। इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये घुड़सवारी में निपुण थे और राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान और भंडारी थे। तो ये राजा टिकैत उमराव जी हैं, उनके साथ में मिलके ब्रिटिश के साथ में संघर्ष किए, सेना एकत्र किए, उनके साथ में लड़ाई किए और अंततः जब मतलब कोई फंसा दिया था ना इन लोगों को। मतलब ये 1857 का जो राष्ट्र आंदोलन चालू हुआ था ना ब्रिटिशों के विरुद्ध, उस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो ये लोग हमेशा अंग्रेजों का विरोध करते रहे और ये आंदोलन इसका मतलब वहाँ के जो बिहार के जो राजकुमार हैं उनके साथ इनका कनेक्शन रहा। ये उनको सपोर्ट करते थे। ओके। और फिर इनका जो डेथ हो गया था वो चुट्टू पालू घाटी में पेड़ में मतलब फांसी देके मारा गया था। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सिद्धू कानू। एक हम लोग का सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के नाम से भी होगा, तो वो बेसिकली इन्हीं को संबोधित किया गया है। और ये भी शेख भिखारी करके एक हमारा मेडिकल कॉलेज है, वो हजारीबाग में है ना। हाँ,
तो इनके मतलब इनके उपलक्ष्य में एक मेडिकल कॉलेज भी हमारे झारखंड में बनाया गया है। और एक सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये भी आंदोलन थे। ये दोनों टोटल 4 भाई थे। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फोटो है, एक है सिद्धू जी, कानू जी, और एक आपका है काल जी और एक भैरव ना, काल भैरव सिद्धू कानू, है ना। ये लोग मतलब एक 4 भाई थे ये लोग, चारों मतलब एक साथ। और इनके साथ 2 बहन भी थी, फूलो झानो, हाँ, फूलो झानो और सिद्धू कानू काल भैरव। टोटल ये लोग मतलब 4 भाई, पूरा फैमिली मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, संघर्ष कर रहे थे। इनका भी अंततः ये योगदान तो रहा बहुत ज्यादा, बट लास्ट में ये लोग भी मारे। यहाँ पे सिद्धू कान्हो चांद भैरव 4 भाइयों का जन्म साहेबगंज जिला के पोरहाट के भगनाडीह में हुआ था। प्लस ये इनका जो बहुत मुख्य एक लाइन था, करो या मरो लाइन भी यही लोग दिए थे, है ना। उस समय जब विद्रोह हुआ था तो उस समय यही लोग करो या मरो का भी लाइन बोलते थे। ओके, ये इनके बारे में थोड़ा बोल दीजिए। ये हमारे देखिए एक हमारे ट्राइबल ही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे अभी के तत्काल राष्ट्रपति भी हैं। ये बेसिकली ये हमारे जो यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, ये हमारे राज्यपाल जो हैं, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में विकास भारती जब ये राज्यपाल थे झारखंड के, तो उस समय वे अभी तो राष्ट्रपति हो गए हैं, बट उस समय यहाँ पे वो आई थी। और जो पद्मश्री अशोक भगत जी हैं, जो इस विकास भारती के सचिव हैं, तो उनको वो एक बहन के रूप में राखी बांधी थी और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था। तो वो भी एक यहाँ पे एक फोटो लगाया गया। हम लोग इन्हीं के अधीन अभी यहाँ पे हैं। हाँ, अब हम लोग अभी यहीं पे इन्हीं के चलते यहाँ पे एक ट्राइबल फाउंडेशन है, ट्राइबल एक म्यूजियम के साथ में ट्राइबल स्टडी सेंटर भी खोला गया है, जहाँ पे बेसिकली ट्राइबल को पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई में मन ज़्यादा लगे उसके लिए एक अच्छा फैसिलिटी वाला एक मतलब एरिया बना दिया गया है। उनका योगदान रहे से। ओके, अब इसके बाद में आपका आ जा रहा है अल्बर्ट एक्का को तो जान ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं भी एक का हूँ, मेरे ही कहीं ना कहीं मेरे गोत्र के हैं अल्बर्ट एक्का जी। तो इनका तो आप जान ही रहे हैं, इनका हाल ही में इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, वीर गति प्राप्त हुए थे वो 1971 के लड़ाई में। ओके, ठीक है, मेरे जैसा दिख रहा है ना। हाँ, एकदम, क्योंकि हम लोग एक हो गया ना। जी। उसके बाद में फिर ये हमारे हैं, ये भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये इनका है तिलंगा खाड़िया। और ये आपका इनके बारे में अगर हम बताएं तो ये जो मतलब भोले भाले आदिवासी को उसमें ठगने का कोशिश किया जा रहा था, उसी के अगेंस्ट में थे तिलंगा खड़िया जी। तो उन्हीं के वही वहाँ पर जो छोटानागपुर में जो लैंडलॉर्ड थे, तो वो लोग आदिवासी भोले भाले बोल के उनको मतलब बहुत ठगने का प्रयास करते थे, तो उसी के अगेंस्ट में थे। लास्ट में ये भी मतलब वीर गति को प्राप्त हुए, संघर्ष करते रहे और अंततः इनको भी नीम टोली में मतलब इनका एक है वहाँ पे दफना दिया गया। ये भी गुमला में मतलब डेथ किया था। ठीक है, इसके बाद हाँ, जैसे कि पहले हम लोग बात किए थे शेख भिखारी, तो शेख भिखारी जिनके साथ काम करते थे वो थे महाराजा या उसको लैंडलॉर्ड भी बोले, तो उनका नाम था टिकैत उमराव सिंह, है ना। टिकैत उमराव सिंह के बारे में अगर बोला जाए तो ये आपका इसके बारे में बता दें तो ये रंडा खाली के बाद गिरफ्तार कर मौखिक आदेश। हाँ, इनको भी मतलब चुटू बालू घाटी में भी ये वीर गति को प्राप्त किए थे। इनका भी मतलब बहुत अच्छा संघर्ष था, बहुत ही काबिल एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। सेना को प्रभाव, लोगों में मतलब यूनिटी लाने का बहुत ज़्यादा इनमें मतलब प्रभाव था। ये मतलब उस तरह के आदमी थे, बहुत ही साहसी। उसके बाद में नेक्स्ट है विश्वनाथ सहदेव जी। इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये भी हमारे सिपाही विद्रोह 1857 के सिपाही विद्रोह में ये भी मतलब अपना योगदान दे रहे थे। और इनका भी मतलब अंततः वीर गति कुंवर सिंह से इनका कनेक्शन था। हाँ, इनका कनेक्शन कुंवर सिंह के साथ था। बिहार के जो कुंवर सिंह थे ना, जो आप बता रहे थे बिहार के ना, विश्वनाथ सहदेव का उनका साथ संबंध था। और लास्ट में ये भी मतलब रांची में आप देखिएगा एक है स्कूल, रांची में एक सरकारी स्कूल है, उसके बगल में कदम का वृक्ष है।
अभी भी वो वृक्ष वहाँ पे है, तो वहीं पे उनको फांसी दे दिया गया था, है ना। तो ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पर का जो म्यूजियम का जो था, लाइटिंग ना ठीक से, ठीक है। तो मेरा फूल आ रहा है, फुल फुल नहीं, यहाँ सही लग रहा है यहाँ तक। सही आ रहा है ना। हाँ सही आ रहा है। हाँ तो आज का जो हमारा यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन कहिए, जो हमारा यहाँ पर का जर्नी था म्यूजियम के अंदर पे, तो वो हम लोग का अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। आप लोगों को मेरे जितना नॉलेज था उतना हम आपको जानकारी दे दिए। अगर मेरे से कोई नॉलेज देने में गलती हो गया होगा तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल दे रहा हूँ। मतलब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे जितना आइडिया उतना ही मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए पहले से सॉरी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो। और कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो रांची में ही है ये म्यूजियम, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये बोलते हुए मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।